नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NRKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामग्याल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑन नेशन नाउ और नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय। So Pradeep ji, what's really going on over here? This is I find a few things to be very strange. The Tamil Nadu Assembly passes a resolution against the new Waqf Act. There are people who are protesting at the fact that a Mela in a festival in Sambal, which was being celebrated in the memory of the nephew of Mahmud of Ghazni, who participated in the sack of the Somnath temple. I didn't even know that you could have such a festival in India. ये मुझे मालूम ही नहीं था। ये तो अब जाके मालूम है कि ये हो क्या गया है। मतलब I think Muslim leadership should have a sane person on the top leader, advising people that आप क्या करना चाहिए without hurting the sentiments. ना कल आप परवेज मुशर्रफ के यहाँ मेला लगा देंगे कि मुशर्रफ कारगिल में आए थे और जबरदस्त काम किए थे और उसके लिए तो you should understand that these things don't go with the sentiments of the country at large. Now, in effect, what you're really doing is when you have a festival in the name of this gentleman, Sayyid whatever Salar, Masood Salar. गाजी सालार गाजी दरगाह मेला। जी, अब मेरा ये कहना है कि ये जनाब वही हैं जो अपने चचा जान यानी महमूद ऑफ गजनवी के साथ थे in the sack of the Somnath temple. And finally he was defeated in the battle of Bahraich by राजा सुहेल देव। मेरा ये कहना है साहब कि अगले दिन आप ये भी कहेंगे कि क्या वो अजमल कसाब के नाम पे एक मेला कर लीजिए। मतलब ये क्या है? What is going on over here? I find it very strange. At least the Muslim leadership should have come forward and said, okay, listen, now can we? There was the collector over there, the SDM over there, somebody called Vandana Srivastava. She had suggested कि भाई आप इस मेले को इसका नाम चेंज करके आप इसको सद्भावना मेला कर दीजिए। वो भी करने को तैयार नहीं है। Now I find it very strange. I don't know what's happening over here. Maybe there is more to the story that details may not have come out. अंदर की बात कुछ और हो सकती है, कुछ और है, क्या है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इस शख्स के नाम पर अगर आप मेला कर रहे हैं तो I find it very troubling. How can you do that? अगले दिन आप घोरी और गजनवी के नाम पे आप मेला लगाएंगे। मतलब जिन्ना का मेला भी लगा सकते हैं। हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना का भी मेला लगाइए। अरे भाई क्यों नहीं? After all, he was the president of our Bombay Bar Association. He was president of the AICCI also. Very strange. In any event, we will talk about that, and of course we'll talk about a couple of other things as well, including Modi ji ke सौगात. As Prakash Ambedkar ji over here says that अगर किसी को सौगात पसंद नहीं है तो मत लो ना। क्या है? सौगात है मोदी for poor Muslims. Don't take it. At the moment, I think we do have Bharat Soni Saab with us. Can we have him on please? And we have Pooja Mishra ji of the Samajwadi Party also with us. Pooja Mishra ji, namaskar. Namaste. नमस्कार नमस्कार। Bharat Soni Saab, how are you? I'm good, sir. Namaskar, sir. Wonderful to see you, sir. Wonderful, absolutely wonderful to see you. I hope you're fine. Yes, yes. तो पूजा मिश्रा जी ये जरा बताएंगे कि ये इस पे ऑब्जेक्शन क्या है कि ये जो संभल का जो मेला है, नेज मेला जिसको कहा जाता था, ये महमूद गजनवी के नेफ्यू के नाम पे जो मेला है, इज योर पार्टी सपोर्टिंग दैट मेला? आप उस मेले का समर्थन कर रहे हैं? जरा बताएंगे प्लीज क्यों? व्हाई? बिकॉज वी मे नॉट हैव इनफ नॉलेज। हो सकता है कि हमारे पास पूर्ण जानकारी ना हो। जरा बताएंगे प्लीज। देखिए राजीव जी, आपको नमस्कार और सभी को नमस्कार मेरा। और इस मेले का समर्थन जो है 2025 से पहले तो भाजपा सरकार भी कर रही थी। ऐसा तो है नहीं कि मेला जो है 2025 में पहली बार लग रहा है, तो इसका मतलब इसके पहले भाजपा सरकार भी कर रही थी। हालांकि मैं जो है इतिहास की छात्रा हूँ नहीं, पर फिर भी मैंने इतने जो है इतिहास में खुदाई हो रही थी तो हमने भी पढ़ाई की थोड़ी सी। और जहां तक बात हो रही है कि जो आप जिनके भतीजे कह रहे हैं, जो आक्रांता थे वो आकर के जो है अटैक करके, जो इतिहास में हमने पढ़ा हुआ है जो कि वो आते थे, लूट करके चले जाते थे। उन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था जो है 1025 में। और जिस समय जो है अगर आप उठा करके मसूद सलार की उम्र देखेंगे तो 11 साल अप्रोक्स। तो अगर आप 11 साल के बच्चे को कहते हैं कि वो जो है मंदिर तोड़ने के लिए आया हुआ था, मतलब आप सोचिए कि वो विदेश से आकर के यहाँ पे मंदिर लूट करके चले जाते थे।
तो ये जो आप परंपरा चली आ रही थी नाजा मेला की परंपरा चली आ रही थी, वो लोग मानते हैं कि वो सूफी थे जो है बसु सलार जी, रहे होंगे, क्योंकि हम लोग तो नहीं जानते हैं। उनके इतिहास में अगर आप चले जाइए तो कई सारे इतिहास में इसकी चर्चा भी नहीं है कि वो उनके भतीजे थे भी कि नहीं थे, और कब नहीं मिलता है साक्ष्य। पर ये साक्ष्य मिलता है, अगर जिस समय सोमनाथ मंदिर का अटैक हुआ और जो इनका जन्म और मृत्यु का समय, तो आप उठा करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो 11 साल की उम्र थी। उसके अलावा अगर हम चले जाते हैं तो जो मेला चला आ रहा था, मेला ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ जो है मुसलमान ही जाते हैं। आपको पता है कि अगर मेला होता है तो प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल होता है, वहां पे मार्केटिंग होती है, इकोनॉमिकल जो है बूस्टिंग होती है। किसी भी क्षेत्र में अगर लगता है मेला तो वो चला आ रहा था, उस पे रोक लगाना। एक तो बड़ी बात ये हो जाती है कि आजकल प्रशासन जो है कहती है कि नहीं, हम इसलिए आपको मेला लगाने नहीं देंगे क्योंकि आप इस नाम से लगा रहे हैं। ये क्या आता है प्रशासन के कार्यभार के अंदर? ये प्रशासन के कार्यभार के अंदर नहीं आता। प्रशासन के कार्यभार के अंदर आता है कि हम आपको मेला लगाने की परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि ये समस्या हो सकती है, और हम आपको मेला लगाने की परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि वो समस्या हो सकती है। वो एक एग्जाम्पल कहते हैं कि नहीं, आप इस नाम से लगा रहे हैं इसलिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे, और इस नाम से लगाएंगे इसलिए डिसहार्मोनी जो क्रिएट हो जाएगी। रादर वो डिसहार्मोनी कभी क्रिएट नहीं हुई इतने सालों से, पर ये जो प्रशासन ने डिसहार्मोनी क्रिएट कर दी, उससे डिसहार्मोनी क्रिएट हो गई। हार्मोनी कह रहे हैं, हार्मोनी मेला लगा दी, जो डिसहार्मोनी क्रिएट कर दिए हुए हैं। पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर कट कहा कि बाबर, औरंगजेब और जिन्ना को चाहने वाले को इस देश से कैसे प्यार हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो संभल में बार बार यही दिखने को मिला कि अब नए नए मंदिर वहां से आए हैं। यही जो गाजा जो मंदिर है जिसके हम लोग जिक्र करते, साला गाजी दरगाह मेला, वहां के नीचे एक सन टेम्पल था। तो एक के बाद उस चीज को उजागर हो रहा है। और यही बोले कि इन्वेडर्स जो थे, आक्रमणकारी जो थे, उनको हम प्रेज नहीं कर सकते, और जो प्रेज करते इनका यहाँ पर कोई स्थान नहीं इस देश में। पूजा मिश्रा जी, तो हम किसको प्रेस करेंगे? कि ऐसे लोगों को प्रेस करेंगे जो मंचों पे खड़े होकर के 5-6 लोगों की भीड़ को जो है ये बता रहे होते हैं कि हम कोर्ट कचहरी नहीं मानेंगे, हम जा करके जो हमारे जो चीजें हैं हम उसको छीन करके लेंगे, हमें जो तोड़ना होगा हम तोड़ेंगे। ये ज्यादा देश विरोधी है कि कोई जो है किसी अगर आप ऐतिहासिक कैरेक्टर है, उस ऐतिहासिक कैरेक्टर को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तरीके से रखा हुआ है, और ऐतिहासिक कैरेक्टर को हर इंसान जो है अपने तरीके से परसीव कर रहा है। वो ज्यादा गलत हो रहा है कि ये ज्यादा गलत हो रहा है? ये ज्यादा गलत है जब जो है आप बाबरी मस्जिद को साइड करते हो, एग्जाम्पल साइड करते हो 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर सबको पता है परिनिर्वाण दिवस होता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। और जब उस डेट को सुप्रीम कोर्ट ने भी साइड किया था तो अपने वर्डिक में बिल्कुल साफ साफ कहा था कि दैट डे वाज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और उसी मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को रिपीट करने के लिए संगीत सोम कह रहे होते हैं, उस पे जो है आपत्ति नहीं है। ये कौन सा प्रेम होता है? यहीं पे इनके मंत्री कहते हैं कि अगर जिसको रंगों से परेशानी हो आप देश छोड़ करके चले जाए, पाकिस्तान चले जाए। और इसके अलावा भी जो अगर आप देखेंगे भी करणी सेना ने क्या किया, आप सोचिए कि जो है उत्तर प्रदेश में करणी सेना वीडियो जारी करती है, लोगों को वीडियो के जरिए बुलाती है कि आप 10 बजे यहाँ पे पहुंचिए, और आपको लगता है कि वो बुलडोजर वगैरह लेकर के वहां पे आसानी से पहुंच जाते हो, पुलिस प्रशासन जो है रोक भी नहीं पाता है। वो पूरे बिल्कुल होता नहीं कि डंके की चोट पे आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं इसलिए उनको आने दिया जा रहा है कि भाई आप करिए तोड़ फोड़। ये ज्यादा जो है हार्मफुल है। ये हार्मफुल है कि एक नाजा मेला चला आ रहा था, वहां के लोगों ने उनको सूफी माना हुआ था या सूफी रहे होंगे वो। राणा संघा को अगर कोई जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया आपके एमएलए ने, तो क्या ठीक है? गद्दार, और ये पूरे हिंदू समाज गद्दार के फॉलोअर्स है, तो ये भी गद्दार हो गए। तो ऐसे स्टेटमेंट देना भी ठीक लग रहा है आपको? नहीं, उन्होंने कहा कि आप राणा संघा के, आपके अंदर राणा संघा के डीएनए है, तो फिर करणी सेना जो है क्या मना करेगी क्या कि मना हमारे अंदर राणा संघा के डीएनए नहीं है? उन्होंने तो ये बोला नहीं। उनके हिसाब से जो व्यक्ति जो है किसी आक्रांता को निमंत्रण देता है देश में आक्रमण करने के लिए, अपने फायदे के लिए, और देश की हानि हो जाती है, वो गद्दार है उनके हिसाब से। और अगर इस पे जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट था या विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन था, इस पे तो जुडिशरी देखेगी ना। ये तो ऐसा नहीं होगा कि जो है आप उठा करके आ जाइए, अब घर तोड़ेंगे, हम हत्याएं करेंगे, हम कार तोड़ेंगे, आगजनी करेंगे, और प्रशासन जो है मूक दर्शक बना रहेगा। आप सोचिए कि वीडियो बना करके जारी कर दिया गया। यहाँ पे अगर आप जो है पीड़िता से मिलने चले जाएं
तो आपको घरों में बंद कर दिया जाता है। इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, उनको पता होता है कि कौन कौन सा कार्यकर्ता, कौन सा नेता पीड़िता से या जो है कहीं पे कोई घटना हुई है तो कौन सा दल जो है रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है पार्टी की तरफ से 10-15 लोगों को, और यहाँ पे वीडियो जारी कर दिया गया हुआ है कि आप 10 बजे यहाँ पे एकत्रित होइए, और प्रशासन बिल्कुल आराम से वेट कर रहे हो कि नहीं पहले जो है ये जो इनको यहाँ पर मैं है वो ले लिया पूजा मिश्रा जी करने दिया जाए, उसके बाद में फिर हम जी पहुंचेंगे। पूजा मिश्रा जी, यहाँ पर एक और बात भी सामने आ रही है कि महाराजा सोहेल देव, जो कि कहा जाता है कि ओबीसी महाराजा थे, अब मुझे मालूम नहीं है कि ओबीसी महाराजा कैसे हो गए, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज द सेम पार्टी जिन्होंने हनुमान जी की भी कास्ट बता दी थी। मतलब मैं महाराजा सोहेल देव को सामने ला करके उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यही सालार मसूद गाजी को उन्होंने शिकस्त दी थी बैटल ऑफ बहराइच में। तो ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो ओबीसी वोट है वो वापस भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाए, महाराजा सोहेल देव को ज्यादा अहमियत दे करके। क्या ऐसा कुछ है मैम पूजा जी? देखिए महाराजा, ये फैक्ट है, ये जैसे मैंने बोला ना कि हिस्टोरिक इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में, और हर इतिहासकार जो रिसर्चर्स होते हैं, हिस्टोरियन, उन्होंने अपने अपने तरीके से जो है, हमको पता रिसर्च कैसी होती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करके आप लिखते हैं। किसी के अगर आपको नेगेटिव पॉइंट्स लिखने तो आप नेगेटिव पॉइंट्स पे ही फोकस करके लिखेंगे। किसी हिस्टोरिकन को उसको उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखने हैं तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही फोकस करके लिखेगा, उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट नहीं करेगा। तो वह पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है वो कैसे परसीव कर रहा है। और अभी अब जो कह रहे फैक्ट है, ये फैक्ट है कि सोहेल देव जी से जो है युद्ध हुआ था और उसमें पराजय का उनको जो है सामना करना पड़ा था और पराजित हुए थे। तो ये जो सोहेल देव जी अब कह रहे हैं कि इनका जो है मना करके या ओबीसी के वोट लेना चाहते हैं, देखिए ऐसे नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो आपको भी पता है कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बना था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में उत्तर प्रदेश में, और उसका परिणाम नहीं निकल के क्या आया था भाजपा के पक्ष में। भाजपा ने तो बहुत कोशिश की, मंचों पे घसीटा, मंचों पे जो है लेकर के आए, बार बार उसके नाम पे वोट मांगा, पर उसका परिणाम नहीं निकला। और सोहेल देव जी की जो है जयंती समाजवादी पार्टी हमेशा से मनाती रही। अगर आप उठा करके देखेंगे तो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे, और हमने कभी चर्चा नहीं की कि भाई ये कार्यक्रम हमारे यहाँ होने चाहिए या होते रहे। तो जो हमें लगता है कि जो वोटर्स होते हैं वो अपने मुद्दे पर वोट करते हैं, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ। वो अलग बात हो जाती है कि आप उनके मुद्दों की बात कर रहे हैं वोटिंग के समय, चुनाव के समय, उसके बाद पूरा ना करें उन मुद्दों को। उन मुद्दों पे पूजा मिश्रा जी, वन मोर क्वेश्चन, वोटिंग के वक्त तो मुद्दा देखते हैं। वन मोर क्विक कमेंट फ्रॉम यू बिफोर आई गो टू भरत सोनी साहब, एंड देन मिस्टर सोनावने ऑफ द बीजेपी हैज आल्सो जॉइंड अस। वंडरफुल। सोनावने साहब नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम टू द शो। जय सिया राम। सो पूजा मिश्रा जी, जो मोदी जी ने सौगाते मोदी जो अभी शुरू किया है, अब हमारे प्रकाश अंबेडकर साहब महाराष्ट्र में बहुत बड़े लीडर हैं, अंबेडकर साहब के पोते हैं, वो उन्होंने कहा है कि तुम्हें ऑब्जेक्शन क्या है, अगर ऑब्जेक्शन क्या है तो मत लो। अगर सौगाते मोदी जो टूल, जो किट प्रेजेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, अगर आप उनको नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। किसने कोई बंदूक थोड़ी रखी है किसी के सर पे, मत लीजिए। ऐसी क्या बात है? इस विषय के बारे में क्या कहेंगे आप जरा कुछ? आई वुड लाइक योर कमेंट मैम। अगर जो है कह रहे कि हमें लगता है कि थोड़ा सा ये कहना कि अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो मत लीजिए। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने घर के पैसे तो थोड़े दे रहे हैं, अपने सैलरी से काट के थोड़े दे रहे हैं कि उनकी सैलरी है, अपना पैसा दे रहे हैं, लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं मत लीजिए। ये जो दे रहे हैं ये तो जनता का ही है ना, वो सबका अधिकार है। आपको पता है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है। और यहाँ पे ये प्रश्न भी पूछा जाएगा, अगर आप हमारे पैसे का दुरुपयोग करेंगे तो भी प्रश्न पूछा जाएगा, और हमारे पैसे से हमें कुछ देंगे तो भी हम लेंगे। अगर हम नहीं लेंगे, आप तो चाहते ही हैं कि राजशाही आ जाए यहाँ पे। ये मुझे लगता है कि ये बयान आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो धन जो आप दे रहे हैं ये वो आपका नहीं है। उसके अलावा अगर ये जो किट की बात कर रहे हैं ना, ये किट भी देख करके दिया जा रहा है अभी, क्योंकि चुनाव आ रखे हुए बिहार में। होली में आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में कहा गया था 2-2 सिलेंडर दिए जाएंगे। अगर आप उठा करके आंकड़ा देख लीजिए, कहीं फोटो आ जाए कि हाँ सिलेंडर बट रहे हैं जी। राइट, ओके। भरत सोनी साहब, तो ये भी नहीं बट रहा होता, ये फोटो नहीं दिख रहे होते आपको तुरंत। भरत सोनी साहब, ये सौगाते मोदी जो है, सर, सो दिस इज एन आउटरीच फ्रॉम द बीजेपी टुवर्ड्स द मुस्लिम्स, और सामने समाजवादी पार्टी की तरफ से और बाकी अन्य पार्टीज की तरफ से कांग्रेस ने भी ये कहा है, ये बात आई है कि अभी तक आपने यू डीमोनाइज द मुस्लिम्स।
in every way possible as far as the BJP is concerned. I'm sure Mr. Sonavane will answer that. और अभी जाकर के आप उनकी तरफ आउटरीच कर रहे हैं, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बिहार इलेक्शन, जैसा अभी अभी पूजा मिश्रा जी ने कहा. व्हाट डू यू थिंक सर, एंड व्हाट इज द कांग्रेस पार्टी थिंक? भरत सोनी सर. Sir, Saugate Modi is nothing but looking at the Bihar elections. And sir, this is particularly because all the time BJP had been ignoring the minorities or Muslim communities. Okay, and then even at present, during these days, they are in a fight with Muslim community in Delhi. So you know, एक जगह पे अलग बात करना, एक जगह पे उनको इस प्रकार से, तो ये कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग कुछ नहीं है. ये वोट बैंक और वोट बैंक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ही है बिहार के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए. लेकिन सोनी साहब, भरत सोनी साहब, जब भारतीय जनता पार्टी दोस्ती और हमदर्दी और सहानुभूति का हाथ बढ़ाती है मुसलमानों की तरफ, तब आप कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स. और भारतीय जनता पार्टी जब अपना जो पुराना रूप वो धारण करती है तो आप बोलते हैं देखिए फासिस्ट, एंटी मुस्लिम. तो ये तो सर गड़बड़ हो गई ना. इधर भी आप बीजेपी को अटैक करते हैं, उधर भी करते हैं. भरत सोनी साहब प्लीज. सर देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ सर, आई एम कमिंग टू दैट जी. आप देखिए, आप एक स्टैंड रखिए ना. एक जगह पे आप मुस्लिम्स को हेट करते हो, मुस्लिम्स के खिलाफ बोलते हो, और आपकी रैंक एंड फाइल उनके खिलाफ बोलती है. आप उनको कंट्रोल करिए ना. आपकी जो रैंक एंड फाइल है, आपके जो सपोर्टर्स है, आपके जो कार्यकर्ता है, उनको और इनके कुछ नेता जो बोलते हैं उनको आप कंट्रोल करिए. ये पूरे देश में सबको रहने का अधिकार है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारों को रहने का है. लेकिन ये जब इलेक्शन आता है तब उनको अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के तरह सौगाते मोदी देते हो. और ये कुछ अभी सौगाते मोदी करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ईद और सोनी साहब सर रमजान का महीना इसलिए. सोनी साहब आगे बढ़कर फडणवीस साहब सेड आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. एक ही चीज है कॉन्स्टिट्यूशन और 13 करोड़ महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, ये मेरे लिए बहुत अजीज है. मैं इनका एंड आप कोरोड कर चिल्ला रहे थे, कोरोड को भी पकड़ लिया, बुलडोजर चला दिया. बुलडोजर जिस प्रकार से चला दिया, जो आक्रमणकारी जो नागपुर रॉयल्स के इंचार्ज थे, तो यस प्रोटेक्ट द लॉ. मगर आप सतपाल जी अभी भी कह रहे हैं कि ये तालिबानी रूल है. सतपाल जी औरंगजेब के साथ इक्वेट करते हैं देवेंद्र फडणवीस जी को. हाल ही में तो अलग अलग जो उपमा उनको दे रहे हैं. इज इट राइट? हाउ कैन सतपाल कॉल हिम नाउ तालिबानी रूल एंड इक्वेट हिम विद औरंगजेब? सर देखिए, सतपाल जी ने जो तालिबानी रूल के लिए कहा, उसका कारण क्या है कि जो हैबिटेट होटल के अंदर जो जाके तोड़फोड़ किया, उस तोड़फोड़ के लिए सर देखिए, कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, और कुणाल कामरा अगर कॉमेडी करता है तो वो पहले भी कॉमेडी करता आया है और पहले भी वो ऐसे बोलता आया है. तो अगर उसके लिए आप एक फ्रीडम फाइटर के स्टूडियो को, जिसमें आशीष शेलार जी का भी सत्कार हुआ है जिस होटल में, उस होटल के मालिक एक फ्रीडम फाइटर की होटल है जो आजादी मिलने तक शादी नहीं की थी उसने, और नो प्रॉफिट बेसिस के ऊपर वो सबको अवेलेबल करता है. अगर ऐसे कल्चर के स्थान को अगर आप तोड़फोड़ करो तो ये सर, होम मिनिस्टर आपका है, चीफ मिनिस्टर आपके है, राज्य सरकार आपकी है, केंद्र सरकार आपकी है, फिर आप किसके खिलाफ आप कर रहे हो सर? तो वो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए. कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसलिए उन्होंने उसको तालिबानी जैसा रूल है. कॉन्स्पिरेसी भरत सोनी साहब, यू नो, आई थिंक कॉन्स्पिरेसी. आप एक के बाद एक नाथ शिंदे जी कहां से आए? रिक्शा चलाता था, दाढ़ी है, चश्मा है. आई मीन एक व्यक्ति जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है, ऑटो रिक्शा चला के जो चीफ मिनिस्टर बनता है. प्राइम मिनिस्टर मोदी चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, पूरे दुनिया में इनका वाह प्रेज हो रहा है. और आप जानबूझ के इंसल्ट, डिफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या इसमें कुछ फर्क है ही नहीं? और हजार आपके उपमा दिखा दिए, आप कंगना रनौत के घर तोड़ दिए, चितले को डाल दिए. तो हाउ डू यू सी दैट? व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? Pradeep ji, you have exactly come to the point and you have raised a very valid question. You raised a very valid point. Sir, देखिए,
एकनाथ शिंदे जी ये एक कार्य सम्राट आमदार करके, मैं मुलुंड में रहता हूं, हमारे बाजू के मेरे बगल वाली कॉन्स्टिट्यूंसी से वो एमएलए है, और उनका काम बोलता है। जब एक नेता का काम बोलता हो, अगर उस नेता के ऊपर कोई व्यंग कसे, कोई व्यंग करे, तो उसको व्यंग की तरह लेना। एकनाथ शिंदे बहुत बड़े नेता है, उन्होंने इस छोटे से जो जिस प्रकार से व्यंग किया गया है उस पे उन्होंने इतनी आपत्ति, उनके कार्यकर्ताओं ने इतनी आपत्ति, एकनाथ शिंदे जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। उन्होंने ठीक है थोड़ा बोल के उन्होंने बोला कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो उस स्टूडियो में जाके घुस के जो हंगामा करते हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं, वो अच्छा नहीं है। और वो हमारे सर आपने ये बोला था नहीं है। और सर देखिए भरत सोनी साहब, आई एग्री विद यू, भरत सोनी साहब आई एग्री विद यू, आई एम विद यू ओवर देयर, आई एम टोटली फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो केतकी चितले को सर 2022 में आपकी सरकार ने 40 दिन के लिए अंदर डाल दिया था फॉर शेयरिंग अ पोएम क्रिटिसाइजिंग शरद पवार। शरद पवार साहब के ऊपर एक टिप्पणी कविता में थी, उसने अपनी फेसबुक पे शेयर किया, और 40 दिन तक आपकी सरकार थी, एमबीए की सरकार थी, 40 दिन तक आपने उसको जेल में डाल दिया था। आई होप उस वक्त आपने ये बोला होगा सर, मुझे याद नहीं है, याद दिला दें सर भरत सोनी साहब। सर उस समय हम लोग वी वर इनटू ए कोलिशन गवर्नमेंट, एंड वी वर इनटू ए कोलिशन गवर्नमेंट, एंड वी हैव टू अबाइड बाय द कोलिशन रूल्स। तो उस तरह से हमने उस समय पे हमने कुछ बोला नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन दैट वाज रॉन्ग। आई एग्री विद यू, यस सर, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज, आई एग्री। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज व्हाट सर। I must say one thing here, the Telugu Desam, the DMK, the Trinamool Congress, the CPI, the CPIM, the Janata Dal, and who else? Couple of other parties too. I think National Conference, my dear friend Omar Abdullah, and a couple of other guys. They were the only people who protested. They all protested when the Rajiv Gandhi government filed 5 cases of sedition against me. ठीक है सर? The Congress filed 5 cases of sedition against me. They were later on withdrawn when the VP Singh government came to power. Okay? So freedom of speech is for everybody, sir. It cannot be selective. Let's be very, very clear. So let me go across now to Mr. Sonavane. Sonavane साहब, मतलब सौगात मोदी जो है वो मुस्लिम आउटरीच के लिए, अब आपको मुसलमानों के वोट की जरूरत पड़ गई बिहार में, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट बहुत हाई है वहां पे मुसलमानों का, इसलिए सौगात मोदी। अभी तक तो आपको याद नहीं आया। और तो और छोड़िए सर, मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर, इतने साल हो गए हैं, कितने साल हो गए सर? 11 साल हो गए ना प्रधानमंत्री जी एज प्राइम मिनिस्टर, 2014 से लेके अब तक। सर एक भी इफ्तार पार्टी में नहीं गए आज तक, उन्होंने आज तक कोई इफ्तार पार्टी नहीं दी और इफ्तार पार्टी में गए नहीं। और जब तक प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे उन्होंने 3 इफ्तार पार्टीज करी अपने कार्यकाल में, मोदी जी एक में भी नहीं गए। तो अब आप बताएं सर प्लीज, सुनावने साहब प्लीज, आई वुड लव टू लिसन टू यू। बोलिए सर। देखिए, एक ही सरकार करके सरकार किसी एक धर्म की या एक जाति या एक वर्ग की नहीं रहती। पंतप्रधान मोदी जी जो है पूरे देश के प्रधानमंत्री है, और देश के प्रधानमंत्री होने के कारण उनको पता है कि पिछले चुनाव में कई सारे मुस्लिमों ने ये उनको वोट दिए हैं। ये महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बहुत बड़ी मात्रा में मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दिए, स्पेशली महिलाओं ने दिया है, और महिलाओं ने दिया है। करेक्ट। हाँ, अपोजिशन वाले जिस तरह से मोदी साहब की इमेज बता रहे हैं कि वो एंटी मुस्लिम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अनेक बार उन्होंने खुद पंतप्रधान जी ने कहा है कि हम लोग उन मुस्लिम के खिलाफ है जो देशद्रोही है, और देशद्रोही मुस्लिम के खिलाफ होना क्या गुनाह है क्या? जो जिस तरह से ये समझो यानी राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर कोई देशद्रोही मुस्लिम अगर विरोध करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उसके खिलाफ बोलना कोई गुनाह है क्या? हम लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, ये देश के प्रधानमंत्री है, और उन्होंने हमेशा, जैसे भी शिवसेना को लेकर आप देख लेंगे तो हमारी शिवसेना में कई मुस्लिम नेता है और कई मुस्लिम कार्यकर्ता है जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर काम करते। यहाँ तक कि बाला साहब ठाकरे जी का पहला मंत्रिमंडल, जब पहली सरकार आई थी महाराष्ट्र में,
तो शपथ लेने वाला पहला मंत्री जो था वो साबिर भाई शेख थे, जी। मुस्लिम कम्युनिटी के थे, लेबर मिनिस्टर जी। हाँ, लेबर मिनिस्टर Yes. उनको बनाया था जी। तो ऐसा नहीं था। ये लोग जो है विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये अभी से अपीजमेंट की पॉलिसी जो चला रहे हैं, उनको बाकी लोग कोई पूछते नहीं है, तो इसके लिए मुस्लिमों का मुद्दा लेकर सत्ताधारी पक्ष के ऊपर आक्रमण करना चाहते, ऐसा कुछ नहीं है साहब। तो सोनावणे सुनामने साहब, हाँ। आपने कहा थैंक यू बोला, it is an expression of gratitude to Muslims for supporting the BJP. I know for a fact that especially in Mumbai and various places, हर जगह पे बहुत मुस्लिम महिलाओं ने बड़े लार्ज नंबर में बीजेपी को वोट दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी सहयोगी पार्टियां जो है उनको भी वोट दिया। यहाँ पर कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने सोचा कि लोकसभा का जो इलेक्शन है उसमें जीत गए तो वही रिपीट होगा, तो दे जस्ट सेट बैक। लेकिन यहाँ पर सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूजा मिश्रा जी, आप भी जरा ध्यान दें प्लीज, ये बड़ा अहम सवाल है जो पूछ रहा हूं मैं बीजेपी से। आपने कहा सौगाते मोदी अभी मिल रहा है मुसलमानों को ड्यूरिंग रमजान। सर दिवाली में हम लोगों को भी कुछ मिलेगा, हिंदुओं को भी मिलेगा कुछ? सर वो तो आनंद, पूछ रहा हूं सर आपसे। आनंद, नहीं, सबको मिलना चाहिए ना। आपने कहा वी डू नॉट केटर टू ओनली वन कम्युनिटी, व्हाई यू केटरिंग ओनली टू मुस्लिम्स? देन यू मस्ट गिव अस समथिंग आल्सो। बोलिए सर। महाराष्ट्र सरकार तो आनंददाता शीदा देती है ना, देती है हर त्योहार पे देती है, गणेश उत्सव पे देती है, दिवाली पे देती है। तो बाकी देश में सर, क्योंकि ये सौगाते मोदी तो पूरे देश में है, बाकी देश में सर ये दिल्ली से शुरू हुआ है। जेपी नड्डा साहब ने निजामुद्दीन से, हजरत निजामुद्दीन की दरगाह जहां पर है वहां से बांटना शुरू किया ना सर। तो मतलब दिवाली के दौरान आप सबको देंगे, अपनी लॉर्ड बुद्धा की जब एनिवर्सरी होगी तब हर एक बुद्धिस्ट को भी देंगे सर। तो आई थिंक महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, इट्स गोइंग ऑन। आई थिंक मैं एक पूछना चाहता हूं आपसे, उद्धव ठाकरे जी ने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ले लिया है। सोनवणे साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने कहा, ये सौगाते मोदी पर भी कहा, सौगाते मोदी पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से आलोचना किया। तो कहते हैं कि वाई मुस्लिम शिवाज कंटिन्यूसली जिस प्रकार से है बांटने वाले, आप तो हमेशा वॉयलेंस ही दिखाते हो, हमेशा तोड़फोड़ के भाषा ही करते हो। अभी क्या हुआ कि आपको ये परिवर्तन आ गया, बटेंगे तो कटेंगे ये आपका स्लोगन था, एक है तो सेफ है ये आपका स्लोगन था, बटेंगे तो कटेंगे। अब बटेंगे तो कटेंगे से आप यहां पर इस चीज पे आ गए हो, तो व्हाई दिस रैपिड चेंज? उद्धव बाला साहब ठाकरे ने बहुत क्रिटिसाइज किया इस, स्पेशली एकनाथ शिंदे जी को। साहब ये कोई बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये पूरे देश के लिए ये स्लोगन था ना। सारे देशवासी भारतीय है, एकात्मता से रहे, एक से रहे, तो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। देश में अगर समझो विभाजन होगा लोगों में तो उससे देश का नुकसान होगा। ये था किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष को लेकर थोड़ी ये टिप्पणी थी। रही बात उद्धव ठाकरे जी का, तो उद्धव ठाकरे जी के जमीन के तले की जो है, पैरों तले की जमीन खिसक गई है असेंबली चुनाव में, और उसके चुनाव में लोगों ने दिखा दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है, किसको समर्थन प्राप्त है। 60 एमएलए चुनवा कर एकनाथ शिंदे साहब ने दिखा दिया कि उनके पास शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की लिगेसी है, वो उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं, धरोहर को लेकर, जिसको उद्धव ठाकरे जी गद्दार सेना बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी यानी वो बोलते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब उनका चल गया, उनका जो यानी जनाधार है वो खिसकता जा रहा है, और वो जनाधार जुटाने के लिए कुछ न कुछ टिक्का टिप्पणी। लेकिन सोनामने साहब, उद्धव ठाकरे जी ने यह कहा है कि असली शिवसेना ने कुछ नहीं किया, वो जो खार का जो होटल आपके साथियों ने तोड़ दिया, मतलब आपकी जो साथी पार्टी है, आपकी पार्टी नहीं, बीजेपी ऐसा काम नहीं करती है फिलहाल, तो महाराष्ट्र में तो नहीं किया है, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी ने किया है, और वो वही हैं, लेड बाय द सेम जेंटलमैन मिस्टर राहुल कनाल, जो एक जमाने में आदित्य ठाकरे साहब के साथ हुआ करते थे, जिनके खिलाफ ईडी का केस था, वो एकनाथ शिंदे के पास चले गए। अब ईडी वीडी कुछ सब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सर उद्धव ठाकरे जी ने यह कहा है कि असली शिवसेना जो है उसने नहीं किया है, ये गद्दार शिवसेना है, ये गद्दार सेना है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्हीं सर पूरा सवाल सुनिए, छोटा सा, सुषमा अंधारे जी ने वही गाना दोबारा गाया है यूट्यूब पे,
और सर उसको पता नहीं कितने लाखों व्यू मिले जो कुणाल कामरा ने गाया था, जिसके ऊपर अब उसके खिलाफ केस हो गया है। तो ना सुषमा अंधारे के खिलाफ केस हुआ, ना आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस हुआ, ना संजय राउत के खिलाफ केस हुआ, ना उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ केस हुआ, और ना ही कोई मातोश्री के ऊपर तोड़फोड़ करने गया। तो अब आप बताएं सर, अब आप बोलें सर। एक तो आपको बता दूं कि सुषमा अंधारी जी के ऊपर हक्क भंग प्रस्ताव लाया गया, एक तो आपको जानकारी है जी, वो तो है सर, सभा लेकिन एफआईआर नहीं किया गया अभी तक। हाँ, दूसरी एक बात जो है, उद्धव जी ठाकरे जो गद्दार सेना जो बोलते हैं जी, उन्होंने तो 2019 में सबसे पहले गद्दारी तो उद्धव ठाकरे जी ने की थी। जनता ने मैंडेट दिया था भाजपा शिवसेना यूती को, और वो भाजपा शिवसेना यूती सवाल कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास। सुनाना साहब, यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन, आप मेरे दोस्त हैं सर, ये सवाल को टेढ़ा मत कीजिए। मैंने आपसे चिढ़ा सर, अगर इफ कुणाल कामरा कैन बी हेल्ड गिल्टी, दूसरी कुणाल कामरे के ऊपर यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, आ रहा हूं मैं, कुणाल काम आपके इसके ऊपर आ रहा हूं, और उन्होंने गद्दारी करने का तो कुणाल कामरा का समर्थन वो कर रहे, तो कुणाल कामरा जी को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ मालूम नहीं। हम जिस शिवसेना से आते हैं उस शिवसेना को स्थापना करने वाले शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, जो खुद एक पत्रकार थे, खुद एक कार्टूनिस्ट थे, और व्यंग और वल्गैरिटी में का जो फर्क है वो जितना हमारे पार्टी को समझ में आता है उतना किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर कोई वल्गैरिटी को लेकर कोई एक हमारे यानी नेता को अगर डिफेम करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया आम वर्कर तो देंगे ना। और रही बात उद्धव ठाकरे जी के ऊपर या सुषमा अंधारी जी के ऊपर या संजय राउत के ऊपर, उनके ऊपर तो बार बार हम लोग एक्शन करते ही रहते हैं जी। तो कायदे से शंभूराज देसाई ने कहा कि कायदे से कानून से काम होगा, मगर शिवसेना का प्रसाद भी मिलेगा। अब इस शिवसेना का प्रसाद भी आप देंगे साथ में, आप क्लियर कर, अभी कॉपीराइट का केस भी हो गया उसके ऊपर। हमारी शिवसेना का तेवर आपको पता है, हम लोग बाला साहब ठाकरे के तरफ से, रूसी करंजिया ने जब बाला साहब ठाकरे के बारे में अनाप शनाप ब्लिट्स में लिखा था तो वो दूसरे दिन में जाके बाला साहब ठाकरे पास माफी मांगने आए थे। हमारे पास हमारी अपनी ताकत है, हमारी स्टाइल हमारे तरीके से शिवसेना, और निखिल वागले हॉस्पिटल में भी पहुंचे थे, और निखिल वागले है, कपिल पाटिल है, कई लंबी फेरी से हमारे दो सजा है कमरान को, कुणाल कामरा को 2 सजा है, एक कानून का सजा और शिवसेना का प्रसाद भी खाना ही पड़ेगा। उनको हम लोग रिक्वेस्ट करें कि महाराष्ट्र में एक शो करे करके। जी दुरुस्त बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल कानून को फॉलो करते हैं सर। आई एग्री विद यू, यस एब्सोल्युटली। तो चलते, इसके पहले कि मैं वापस जाऊं पूजा मिश्रा जी के पास, तो सुनामने साहब ये भी आप बता दीजिए कि तमिलनाडु असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हुआ है नए वक्फ एक्ट के खिलाफ। उन्होंने कहा है कि जेपीसी का मजाक उड़ाया गया। जेपीसी में जो 19 अमेंडमेंट दिए गए विरोधी पार्टियों द्वारा, उनको नजरअंदाज कर दिया गया, उनके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हुआ, और उसके बाद आपने यू हैव बुलडोज दिस एक्ट थ्रू दी लोकसभा as far as the Waqf Act is concerned. Now this is what the Tamil Nadu Assembly has done. I think West Bengal Assembly will probably follow suit, so will Karnataka, and I think so will Telangana and Himachal Pradesh and Kerala. तो सर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? सर देखिए कि अभी जैसे बार बार कहते हैं हम लोग अपीसमेंट की पॉलिटिक्स ये लोग करते रहते हैं। जी बिल्कुल। लागुल चालन करना जिसको कहा जाता है, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी के वोट पाने के लिए गलत चीजों को उसको समर्थन देना। जैसे कि उसकी आंकड़ेवारी है कि वक्फ बोर्ड जो है देश में का तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा जमीन हासिल करने वाला एक बोर्ड है, और जिसके पास इतनी सारी लाखों के इसमें जमीन पड़ी हुई है। तो अगर सरकार उसको लेकर उसको कुछ अच्छे उपयोग में लाना चाह रही है, और उसके ऊपर जो कमिटियां है जिसके ऊपर क्या एक्टिविटी चलती है उसको अगर जांच करना चाहती है, तो किसी भी अच्छे मुस्लिम कम्युनिटी को या अच्छे लोगों को, कई मुस्लिम संस्थाओं ने इसका स्वागत भी किया है सर। जी दुरुस्त बात है। एंड लेट मी क्लैरिफाई फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स, कई लोगों ने स्वागत किया है। सुनामने साहब इज फ्रॉम द एकनाथ शिंदे सेना। जी दुरुस्त बात है। लेट मी गो बैक टू पूजा मिश्रा जी। पूजा मिश्रा जी, जो क्योंकि वो जो महाराजा सोहेल देव के बारे में मैंने बात करी थी तो वो बात रह गई थोड़ी सी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपने जो एक अभियान शुरू किया, यानी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आगरी, बाकी सब ए में जितने भी लोग आते हैं, उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ये संभल का इशू, महाराजा सोहेल देव का इशू,
इसको आगे लाया गया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि महाराजा सुहेलदेव का, वैसे पहले तो एक इमारत है ही उनका बहुत बड़ा स्टैचू है ही, अब कहा जा रहा है कि और भी बड़ा एक बहुत बड़ा स्टैचू बनेगा, भव्य ना जाने और कुछ क्या क्या बनेगा। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, पूजा मिश्रा जी? देखिए जो है, हालांकि अभी आपने सुहेलदेव जी की बात की, मैंने शुरुआत में कहा, आपको पता होगा कि जब समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया था तो भाजपा ने एक डीपीए लेकर के आई थी, दलित पिछड़े अगले, वो कहाँ चला गया? देखिए, नारे देने से नहीं होता है, जमीन पे रहने से, धरातल पे रह करके लड़ने से होता है। अभी आप क्या पूछ रहे थे, दीपावली पे क्या देंगे? हमने बताया ना आपको, उत्तर प्रदेश में 2-2 सिलेंडर देना था होली में। आप एक फोटो देख लीजिएगा ढूंढ करके सोशल मीडिया पर, एक देख लीजिएगा इवेंट जहाँ पे जो है बट रहे हैं वो नहीं दिए गए। और ये अभी इससे पहले जो है प्रवक्ता जो थे वो बार बार कह रहे थे अपलीजमेंट, ये सौगातें मोदी उसी को कहते हैं, अपलीजमेंट। जब आपको जो है 543 सीट में एक जो है मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिलता जिसको आप चुनाव लड़ा सके। और अगर आप उठा करके देखेंगे 2024 की जितनी रैलियां आपने की हुई थी, आंकड़े बताते हैं कि अगर जो है मोदी जी ने 119 रैली की हुई तो उसमें जो है 110 रैलियों में सिर्फ और सिर्फ एंटी मुस्लिम बातें कही थी। और अभी आप बोलते हुए बोले कि हमें मुस्लिमों से प्रॉब्लम नहीं है, हमें उन मुस्लिमों से प्रॉब्लम है जो देश विरोधी है। भाई, हमें तो हर उस व्यक्ति से प्रॉब्लम है जो देश विरोधी है, आपको खाली मुस्लिमों से ही प्रॉब्लम है? ये कैसे विडंबना आ जाती है? आपको तो हर उस व्यक्ति से प्रॉब्लम होनी चाहिए जो देश विरोधी है, चाहे वो संगीत कौम ही क्यों ना हो। तो लेकिन नहीं, आप चाहते हैं कि जो अगर आपके पार्टी का है, आपके साथ में है, तो देश विरोधी भी रहे तो भी आपको कोई आपत्ति नहीं है। आपने बिल्कुल इस बात को साफ साफ पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा अगर कोई सेफ है यूपी तो मुस्लिम्स आर द मोस्ट सेफेस्ट इन उत्तर प्रदेश। मुस्लिम्स आर द मोस्ट सेफेस्ट इन उत्तर प्रदेश बिकॉज, सोनी साहब हंस रहे, बिकॉज अगर हिंदू सेफ है तो मुस्लिम सेफ है। अगर 10 हिंदू का घर जलेगा तो 10 मुसलमान का घर, तो क्या 10 हिंदू का घर जलेगा तो 10 मुसलमान का भी घर चलेगा। तो क्या यह फियर फैक्टर है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि वो उनका सेवा, सुरक्षा, सुशासन का 8 साल बेमिसाल इस तरीके से निकला? आप सोचिए कि जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पॉडकास्ट पे बैठते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सेफ है। अगर वो 100 परिवारों के बीच में एक मुस्लिम है तो वो सेफ है। और वहीं पर अदर साइड आप सुनिए कि वहीं पर अगर 50 हिंदू 100 मुसलमानों के बीच में है तो वो सेफ नहीं है। कैसा सेफ रख रहा है हमारा मुख्यमंत्री मुसलमानों को? मतलब एक ही समय पर आप जो है अपने प्रदेश के मुसलमानों के अगेंस्ट बोल रहे हो और आप कह रहे हो वो सेफ है। जिस प्रदेश के जो मुखिया हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि चाहे वो विपक्ष का हो चाहे किसी भी समाज का आता हो, उनकी रक्षा करे, उनकी सम्मान की रक्षा करे, उनकी राइट्स की रक्षा करे, वो बैठ करके कहता है कि वहीं पर आप जो है 50 हिंदू 100 मुसलमानों के बीच में रहे तो सेफ नहीं है। क्या ऐसे उत्तर प्रदेश में जो है स्थान नहीं है क्या? जिस बाई इलेक्शन की बार बार ये डंका पीटते हैं कि इस क्षेत्र से हमने इतने वोट पाए, वहां पे तो यही रेशियो है ना। क्या वो हिंदू सेफ नहीं है क्या वहां पे? तो ये जब मुख्यमंत्री जी खुद ही जो है पॉडकास्ट में ही जब मुस्लिम के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो कहां से सेफ है? आप सोचिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक धर्म के अगेंस्ट में बोल रहे हो और बिल्कुल इतनी आसानी से ये भी कहते हुए कि नहीं सेफ है। भाई कैसी बात कर रहे हैं? गले पे तलवार रख करके आप कह रहे हैं आप सुरक्षित हैं, हम तो काट थोड़े रहे हैं, तो गले पे तो रखे हैं। तो थोड़ा आप इलाहाबाद से हैं, इस तरीके आप इलाहाबाद से, मैम आप प्रयागराज से, मतलब इलाहाबाद से हैं, अभी जबान पे तो इलाहाबादी चढ़ा हुआ है। आप जरा ये बताएं कि असलियत क्या है वहां पे? ये बार बार कहा जाता है, मैं ये सवाल बार बार पूछता हूं कि बार बार यहां पर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले हुआ करती थी जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उसके पहले मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके बीच में बहन जी की सरकार थी। ये कहा जाता है कि आज की तारीख में इतनी ज्यादा सेफ्टी और कभी नहीं हुई है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बाकी हर चीज की सुरक्षा को लेकर के आज तक कभी भी उत्तर प्रदेश इतना खुशहाल नहीं हुआ है जो कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और में है। उपमा भी थी। 2017 से पहले हर गली में दंगा होता था, 2017 के बाद उन्हीं गलियों में उत्साह है, मेला लगे हैं, सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। ये है योगी आदित्यनाथ जी का और बीजेपी का जलवा। जी बोलिए मैम। अभी आपने देखा अभी जो संभल के सीईओ कहते हैं कि अगर आपको रंगों से परेशानी है तो आप इंडोर रहिए।
अभी मेरठ में कहती हैं कि जो है नमाज सड़क पे नहीं होगी, अगर आप सड़क पे नमाज करेंगे तो आपका पासपोर्ट और लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। और कहते हैं और एड ऑन करते हैं, और ऐसा नहीं कि आप सड़क पे मत करिए, आप छत पे भी मत करिए जी। मतलब ये आपके सेफ्टी के लिए कि आप छत पे भी मत करिए। तो ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई। अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो पहले एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। हाँ, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में पहले से क्राइम घटा है, पर वही एनसीआरबी का आंकड़ा ये भी कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों में वृद्धि हुई है। अगर आप उठा करके देखेंगे तो सबसे अधिक अगर महिला अपराधों दर्ज किए जाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश से किए जाते हैं। और लास्ट वीक की घटना है, एक लड़की जो है बनारस में इंटरव्यू दे करके अपने लखनऊ अपने भैया भाभी के घर जा रही थी, और लखनऊ आप सोचिए कि कैपिटल सिटी है। इससे पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका हुआ है, जो दिन दहाड़े अपने पति के साथ में महिला थी उसके साथ में जो है लड़के बदतमीजी करते हैं और मुख्यमंत्री जी सदन में 2 गलत नाम ले लेते हैं, क्योंकि एक धर्म और जाति को उनको टारगेट करना होता है। और उसके बाद उसी लखनऊ शहर में बच्ची जो है लगभग जो है 5 थाने क्रॉस करके उसको अपराधी लेकर के जाते हैं। वो अपने भाभी को कॉल करती है, अपने भैया को कॉल करती है, अपना लोकेशन भेजती है और बताती है कि मुझे बचा लो। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं कि वो बेटी कह रही मुझे बचा लो। उसके भैया 112 नंबर पे कॉल करते हैं, और जब घटना घटित हुई उससे लगभग 3 घंटे पहले लोकेशन पुलिस को दे दिया जाता है। लखनऊ की बात चल रही है, और चलता फिरता बिल्कुल रोड, और वहां पे 5 थानों को क्रॉस करके वो लेकर के चले जाते हैं। और जब पुलिस पहुंचती है, आप सोचिए आपको 2 घंटे पहले लोकेशन मिल गया, आपको जो है 112 पे जो है एफआईआर मिल गई, और उसके बावजूद भी जब आप पहुंचते हैं तो बेटी की हत्या हो चुकी रहती है, उसकी रेप हो चुका रहता है। अब यहाँ तक तो देखिए, आप ये छोड़िए कि जो है यहाँ पे तो जजमेंट भी ऐसे आने लगे हैं, क्या कहा जाए कि एक जज है, उनका नाम बड़ा अच्छा सा है, नारायण मिश्रा करके है कुछ, हरि नारायण मिश्रा, उन्होंने जजमेंट दिया हुआ है। उनका जजमेंट क्या आया हुआ है कि अगर किसी जो है एक 12 साल की बच्ची होती है, उसको कुछ लोग ऐसे खींच करके जबरदस्ती ले जा रहे होते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं, उसके साथ में बिल्कुल गलत करे, तो वहां के जो लोग चीख पुकार सुन करके जाते हैं उनको, वो जो विटनेस है ना, वो विटनेस भी है, और वो वहां पे जो उन्होंने बच्चे को बताया था विटनेस भी है, वो कोर्ट में बयान भी देते हैं कि ऐसा हो रहा था। तो कोर्ट का जो जजमेंट आता है वो ऐसे आता है उन जज का कि अगर बच्ची के जो है या फिर महिला के प्राइवेट पार्टों को टच किया जाता है, उसका नाड़ा तोड़ा जाता है, उसके कपड़े फाड़े जाते हैं, तो ये अटेम्प्ट टू रेप केस में नहीं आता है। ये लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी का हालात हो रखे हैं उत्तर प्रदेश में, और ये परसेप्शन बाहर बनाया जाता है कि ये जो है उत्तर प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया ना ऑर्डर को जी, वो अलग बात है, स्टे कर दिया। आप ये तो सच्चाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किया ना। But that is very similar. I'll be very frank with you, Pooja Mishra ji. That is very similar to a similar order which had been passed here in Maharashtra by another High Court judge, where she said, it's a female High Court judge who has now just been granted her full pension, who had said कि अगर skin to skin touch नहीं है तो molestation नहीं है. She actually said that it's in the order. So that is part of the individual judges. You can't really do anything about it. Talk about संबल CEO, अभी बार-बार संबल CEO बार-बार मींस मीडिया में आ रहे हैं। उन्होंने अगर एडवाइस किया है कि आप ये गुजिया सेवइया डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो गुजिया भी खाना सीखिए गुजिया। तो इसमें इतना बवाल बने। होली के टाइम पे वक्त पे उन्होंने कहा कि आप सवेरे नमाज में निकलो तो रंग, तो वो बात इज क्रिएटिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड ये शांतता स्टेबलाइज कर रहे, तो इसमें बार-बार उसको 2027 का चुनाव लड़ेंगे भाजपा के टिकट पे। नहीं अगर वो सेवैया बात 2027 में नहीं लड़ेंगे तो आगे लड़ेंगे, कहीं जाएंगे, ये मान के चलिए आप। ये जो है इस तरीके की उसमें वो प्रशासन वाली गतिविधि नहीं है उनकी। No, but he's trying to bring peace and calm है ना वहां पर कि आप सेवैया बांटना चाहते हो तो गुजिया भी खाना सीखो। I mean, what is wrong in that, पूजा मिश्रा जी? तो ये कहाँ से जो है पीस बांट रहा है? अगर मेरी इच्छा है मैं गुजिया बांटूंगी, जिसको खाना है खाइए, और मेरी इच्छा है तो मैं गुजिया भले बांटूंगी पर सेवैया नहीं खाऊंगी। ये थोड़ा मुझे कोई फोर्स कर सकता है कि नहीं आपको सेवैया खानी पड़ेगी। अरे अभी उत्तर प्रदेश में तो आप जानते नहीं क्या क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि जो है मीट की जो दुकानें हैं ना वो बंद हो जानी चाहिए। वो हालांकि जो है यहाँ पे जब कावड़ यात्रा चलती है इलाहाबाद से लेकर के जो है बनारस तक, तो ये सारी जो मीट की जो दुकानें होती है वो बंद हो जाती है। वो कहने की नहीं, ईद है तो मीट बंद हो जाना चाहिए क्योंकि नवरात्रि चालू हो रही है। आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में कल्चर है
कि दुर्गा अष्टमी के दिन में जो है मछली चढ़ाई जाती है। जी। कामाख्या मंदिर में जो है, मैं गई हूँ मंदिर में और मैंने वहां पे बलि होते देखा हुआ है कि बलि होती है। मतलब जहां होती है। पे ये कल्चर का पार्ट है, आप वहां पे ये कह रहे हो तो कि नहीं आपको जो है बंद कर देना चाहिए। आप कह रहे कि आपकी कौन सी ईद है कि आप ईद बिना जो है मीट के नहीं मना सकते। भाई आप कौन होते बताने वाले? आपसे तो वो दूसरा कोई ये थोड़ा कह देगा कि अगर कोई हमसे कह देगा क्यों क्या आपत्ति है, आप क्यों मीट के साथ में जो है नवरात्रि नहीं मना सकती, भाई नहीं मना सकते हैं। वैसे अगर वो मीट के बिना मीट के साथ ही मनाना चाहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैंने हालांकि आप लोग कह रहे हैं तो हालांकि कई लोगों से सुना है कि उत्तर प्रदेश के बाहर एक स्यूडो परसेप्शन बनाया गया, एकदम एक परसेप्शन बना दिया गया हुआ कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ जो है बढ़िया चल रहा है। उत्तर प्रदेश के नागरिकों से अगर आप बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के नेटिव्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। तो कहने का सब कुछ मतलब ये बढ़िया हुआ चल पूजा रहा मिश्रा होता तो जी, शायद हो सकता है कि जो है ये जो पुलिस प्रशासन है वो नेता जैसे बयान नहीं दे रहे होते। तो पूजा मिश्रा जी कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने कहा कि 2027 में भाई साहब जो हैं सीईओ साहब, रेसलर जो थे, पहलवान हुआ करते थे ना, तो ही वाज अ रेसलर, वो शायद बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संजय मिश्रा जी ईडी में 5 साल तक उनको एक्सटेंशन मिलती रही, वो अब पीएम एडवाइजरी काउंसिल में है। कहने का मतलब ये हुआ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में गए, राइट। सो बट एनीवे, भरत सोनी साहब, एवरीबडी हैज देयर फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स। आफ्टर ऑल जैन मनी दीक्षित was one of Indra ji's favorite bureaucrats, so you really can't raise a question on that. तो भरत सोनी साहब आप ये बताएं कि वास्तविकता में it is not as if any government per se has cloaked itself with great glory with regard to freedom of expression. That cartoonist, that young man was sent to prison even during Congress rule. ऐसा तो नहीं है कि even you have been very tolerant of freedom of expression. तो उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे सर भरत सोनी साहब? सर देखिए, why Kunal Kamra is being made scapegoat? Because he has no followers. See, देखिए कॉमेडियन सर आपने तो ज्यादा फॉलोअर कर दिया। सोनावने साहब ने तो उनके फॉलोअर इतने बढ़ा दिए, इतने बड़ा। आई बिलीव नाउ ही इज चार्जिंग 20 lakhs पर शो। आई थिंक ही मस्ट थैंक मिस्टर सोनावने। सर मिस्टर सोनावने एंड ऑल एकनाथ शिंदे फॉलोअर्स, उन्होंने तो मार्केट प्राइस बढ़ा दिया सर कुणाल कामरा की। जी बट भरत सोनी आपके he joined राहुल गांधी जी इस भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के पूरे फॉलोअर्स के साथ जुड़ गए, तो इतना महान का फॉलोअर्स हो जाएंगे। जो सोनावने साहब बार बार कह रहा कि ही इज अ कांग्रेस एजेंट एंड इंडिया अलायंस एजेंट, क्या सच नहीं है मूविंग अराउंड विद राहुल गांधी इन भारत जोड़ो यात्रा? प्रदीप जी देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉलोअर्स हु आर फाइटिंग ऑन द स्ट्रीट। ये जो जाके जो हंगामा किया, ऐसे जो फॉलोअर्स है, ऐसे फॉलोअर्स कुणाल कामरा के पास नहीं है या किसी भी कॉमेडियन के पास नहीं होता है। तो वो एक कमजोर कड़ी होती है। और सर देखिए, जिस प्रकार से अजीत दादा ने क्या कहा है उसका वीडियो आज वायरल है। अजीत दादा ने तो गद्दार भी कहा है, पन्नास खोके भी कहा और क्या क्या कहा है। वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। तो अजीत दादा के घर पे जाके क्यों नहीं तोड़फोड़ करते? अजीत दादा को क्यों नहीं घेराव करते? है ना सर? अजीत दादा ने कहा है, उद्धव ठाकरे जी ने कहा है, ये सभी लोगों ने कहा है, तो उनके ऊपर नहीं। इसीलिए सर ये जो है, सर वो पॉलिटिशियन है ना, इसलिए सर वो नेता है, इसलिए वो कहते हैं भाई बिल्कुल बिल्कुल कुणाल कामरा जी को कांग्रेस ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ज्वाइन कर लो, फिर कोई कुछ नहीं करेगा, आप जो मर्जी करो उसके बाद। सर वेदर टू ज्वाइन कांग्रेस और नॉट इज कुणाल कामरा's डिसीजन। सर वो उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है वेदर टू ज्वाइन कांग्रेस और नॉट। बट हियर द क्वेश्चन इज सर, से ये जो कोई भी ये साजिश कर रहा है सर, जो कोई ये बहुत बड़ी साजिश है सर। सर ये क्या है, इनको ये बीजेपी के लोगों को एकनाथ शिंदे जी स्ट्रांग होने नहीं चाहिए, उनको ये इसमें उसको उलझाए रखने हैं। और सर देखिए, जिस प्रकार से छगन भुजबल जी के लोग तोड़फोड़ करके आए थे, उनसे माफी मंगवाई थी और रिजाइन करवाया था, ऐसी कहीं साजिश आने वाले दिनों में न हो शिंदे जी के साथ तो अच्छा रहेगा। बिकॉज सर उद्धव ठाकरे जी की पहली ऑल अरेस्टेड सर, उनको बेल मिली है, केसेस आर देयर अगेंस्ट देम। राहुल कनाल सबके खिलाफ हुई केसेस तो सर वो मिल जाने दीजिए सर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज सर, इन 2019 व्हेन Shiv Sena and BJP came to power, they say it is a mandate for them
Sir, mandate also was that the Shivasenite will be made chief minister first ऐसा 2.5 उद्धव जी कहते हैं। years. उस टाइम पे CLP के नेता एकनाथ शिंदे जी थे। सर, अगर एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी की फर्स्ट चॉइस थे, वो उनको बनाना चाहिए कि नहीं, वो लोग आज नहीं बोल रहे। आज बीजेपी वाले आपको ये नहीं बताएंगे कि हम लोग हमारे वादे पे मुकर के एक शिव सैनिक को नहीं बनाया। उस समय उद्धव ठाकरे जी को खुद को नहीं बनना था सीएम, उस समय पे एकनाथ शिंदे जी सीएलपी के लीडर थे और उन्हीं को बनाने जा रहे थे। ये तो बाद में हुआ कि भाई वहां पर अंदर दो ऐसे चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कि जो लोग ये सरकार को चलने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि ठाकरे फैमिली में से किसी को एक बनाइए, तब जाके उद्धव जी बने। You know, Soni sir, I want to talk to you about, you know, the main thing that Sonawane साहब and पूजा मिश्रा जी, ये appeasement जो बीजेपी आपको चार्ज करते हैं हमेशा, राशिद आलवी जो आपके कांग्रेस के लीडर है, वो बार बार मुसलमानों को उकसाकर सड़क पर आने को कह रहे हैं कि जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ 2 साल, आपको वकफ बिल के खिलाफ आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और एक संघर्ष चालू कर दिया है। नो, कंटिन्यूसली हमने देखा राम मंदिर से लेके महाकुंभ से लेके आर्टिकल 370 होगा, अलग अलग वकफ रिफॉर्म बिल में you are trying to garner the Muslim votes by trying to provoke them. This is a charge on you of Muslim appeasement. किस पर और किस हद पर 4% कर्नाटक में 4% फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स को 4% रिजर्वेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो this seems to be openly obvious that you are doing these things to just do appeasement of Muslims. I have to respond to that. Yes, you. Sorry, sir. That 4% reservation, what these people are trying to project it as a Muslims, it is not only for Muslims, it is for all minorities. But why? उसमें सिख भी है, उसमें बाकी के क्रिश्चियन भी है, सभी के लिए है। Sir, it's business. Why? I don't understand. Where do minorities come in from? It's a government contract. Sir, Government tenders में minority कहाँ से आ गई? Sir, because the minorities have not been able to go into that, that is what that reservation is. Sir, उनको वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेने ही नहीं दे रहे, उनको वहां पर उसमें जाने नहीं दे रहे वो लोग। जी सर, और वो एक ही लोग उसको मुस्लिम बता रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ मुस्लिम नहीं है। सर, आप जेन्युइनली बिलीव करते हो भरत सोनी साहब, यूर अ फ्रेंड, आप असल में विश्वास करते हो उस बात पे? सर क्यों नहीं होना चाहिए सर रिजर्वेशन मुसलमान को और माइनॉरिटीज को? जी, इन अ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्ट में 4% ऑफ द रोड्स हैव टू बी मेड बाय माइनॉरिटीज। इज दैट व्हाट यू से? सर, अभी जो हाल है मुंबई का, अगर ऐसा मुंबई में आ गया तो पता नहीं क्या हाल होगा सर। अभी इतनी मुश्किल हो रही है, हालत खराब हो रही है, कहां पे गड्ढा कहां पे सड़क। सर क्या बोल रहे हो सर? राजीव जी, मुंबई में 4% नहीं होते हुए पूरे कंक्रीट रोड की जो हालत है और पूरे मुंबई को खोद के रख दिया है, तो 4% तो मतलब यू आर स्पीकिंग मिस्टर रामदास अठावले's लैंग्वेज। रामदास अठावले ये बोलते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम में भी SC, ST, OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए तो जाकर क्रिकेट टीम बननी चाहिए। वेरी गुड, वंडरफुल। I have not heard Ramdas Athavale ji. Sir, he appeared on my show 6 times and he's repeated it 6 times. No, I was just want to ask you, it is apparent, जैसे right from Ram Mandir, Rahul Gandhi ji or Congress leaders not going to Ram Mandir, then afterward Mahakumbh का किस पर criticize, Article 370 का criticize, Waqf reforms, a pattern is there continuously one after the other. Soni Saab, don't you think it clearly spikes, it shows that appeasement is there, you're indulging, not only you, but India Alliance, including Pooja Mishra's Vijay's party, Samajwadi Party. Sir, Rahul Gandhi being a leader of opposition, Pradeep ji, Rahul Gandhi being a leader of opposition was stopped from speaking. He was not allowed talking. He said outside the parliament that I was going to praise Kumbh Mela. I was going to praise Kumbh Mela, but I was not allowed to talk. And after that, he was to say that what is about unemployment. But आप अगर अपोजिशन को बोलने नहीं दोगे तो देश की संसद किस लिए है? तो सर यहाँ पर एक चीज, क्योंकि आपने ये रेस किया है मैटर, मैं चाहूंगा आप इस पे जवाब दें और मैं चाहूंगा पूजा मिश्रा जी भी इस पे कमेंट करें। अरे यार, वो लोकसभा में आए हैं, अपनी बहन को उन्होंने बड़ा सीरियस देखा और उनकी गाल के ऊपर ऐसे किया, अपनी बहन की गाल पे ये पूछ के भाई क्या हो गया, सब ठीक तो है? उसके ऊपर इतना बवाल क्यों मच गया सर? शी इज अ सिस्टर सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। इस पे प्रॉब्लम क्या है, ये जरा बताया जाए। कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ है भरत सोनी साहब?
सर वही मैं कह रहा हूं कि सर कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का उल्लंघन नहीं हुआ। जो सभा के रूल्स है उसके वो कोर्ट तो करे। और सर देखिए हमारा लोकसभा का जो सेशन है वो लाइव पूरे देश में दिखता है। आप उनको बोलने दीजिए और आप पूरे देश को दिखाइए और देश को नक्की करने दीजिए। सर अगर जो स्पीकर खुद उनको नहीं बोलने देगा और उनको खुद रोक देगा और उनको वो खड़े हुए बोलने के लिए और स्पीकर चल दिए बाहर, सर ये भी तो देखा ना हमने सर। करेक्ट देखा सर ये लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। which is very unfair, absolutely unfair। पूजा मिश्रा जी आपने देखा, अरे भाई राहुल गांधी अपनी बहन से बात कर रहे हैं, अगर उसकी गाल के ऊपर हाथ लगा दिया अपनी बहन क्यों पूछ रहा है वो कि भाई इतनी सीरियस क्यों बैठे हो, क्या हो गया, तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन क्या होनी चाहिए? पूजा मिश्रा जी आप बताइए, आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? को प्रोजेक्ट करके दे वांट द एंटायर ओबीसी वोट हियर बिकॉज़ द मुस्लिम वोट इज नॉट गोइंग टू कम टू देम एनीवे। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। That is just about it. One thing about what Prime Minister Modi always says that we have to come out from the slave mentality. Yes. And this is one of the things. Nobody talked about this particular incident where you're glorifying the invaders. You are having a mela on the invaders. Now this is setting the things right. Now these Salar things cannot happen in Ghazi. अब ये बोलते हैं सूफी था तो गाजी क्यों लिखता है? बिल्कुल। And clear cut फडणवीस जी ने भी यहाँ पर इस चीज को ग्लोरीफाई किया कि इन्वेडर्स या जो औरंगजेब जैसे व्यक्ति का अगर आप तारीफ करते हो तो यहाँ पर आपका कोई स्थान नहीं है। प्रदीप जी मुझे नहीं लगता, आप ही इनफैक्ट बोल रहे थे yes, कि मुस्लिम डेलीगेशन हैड मेट यू द अदर डे। बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा था यार हमारा औरंगजेब से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो now they are realizing it actually exactly because somebody is pointing out to them. Yes. They are pointing out to them that what are you doing? आप एग्रेसर्स आतंकवाद जो सामने आ रहे हैं उनको आप ग्लोरीफाई कर रहे हो, उनको आप स्थान दे रहे हो, आप मेला लगा रहे हो उनके नाम पर, तो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। दैट्स व्हाट ही सेड। सर मेले होने चाहिए भगत सिंह के नाम पे, मेले होने चाहिए राजगुरु के नाम पे, मेले होने चाहिए ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पे। एग्जैक्टली। आप ये कर क्या रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है वेरी फ्रैंकली। वो सेकंड लेफ्टिनेंट उमर फयाज उसके नाम पे मेला होना चाहिए, ये होना चाहिए सर। अब्दुल हमीद के नाम पे आप मेला लगाइए, और ये किनके नाम पे आप मेले लगा रहे हैं, मतलब हमारी तो समझ के बाहर है। तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये कौन इनको एडवाइस कर रहा है, गॉड ओनली नोज। वेल दैट्स जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न्ड। वेरी अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड देयर इज अ कंस्पिरेसी टू प्रिवेंट अस फ्रॉम टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी। राहुल गांधी जी के बारे में बात करने के खिलाफ कोई साजिश है। एनीवे आई एम जस्ट किडिंग, दैट इज जस्ट अबाउट इट एज फार एज टुनाइट शो इज कंसर्न्ड। आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। वो भैया वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल इन द कंट्री। एंड दैट इज जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। आप सब लोगों को वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।